people get you naked, people get you to run you naked on the ground. सब होता है वो। Get you're wearing underwear over your pants. इंजीनियरिंग में आपको 7-7.5 CGPA लाना है ना, तो आपको एग्जाम्स के 1-1.5 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप 15 दिन पहले करोगे तो 8 आ जाएगा, Correct. 1 महीने करोगे तो 9 आ जाएगा, और एकदम एग्जाम सही के बोल एकदम रहे हो। 1 रात पहले करोगे तो जस्ट पास होगे। हाँ। सुबह वाले का उसके सामने वाला भरोसे लो। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था शशांक, वो बहुत ही मैं बोलूँगा समझदार था या क्या था, ठीक है। हम वर्ड कुछ और बोलना चाह रहे हैं। फोन आता है एक बार, अरे आशीष। मैं बोला हाँ सर कैसे हो। अरे तू प्रोडमैन में कैसे आया। मैं बोला सर प्रोडमैन क्या होता है। क्या बोला? अरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मैं बोला सर इतना कूल जॉब है क्या ये। सर ने पूछा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। सर व्हाट आर योर वीकनेस सर। डन। अब देख रहे हो, अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अंदर से खुशी बहुत हो रही है, ठीक है कि यार आज तो सिलेबस से आ रही हैं चीजें, ठीक है। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा हाउ डू सी यू ग्रोइंग इन नेक्स्ट 5 years विद द कंपनी। आप निकल जाओगे, ठीक है, MBA करोगे। ये अगला ही क्वेश्चन था मेरी लिस्ट में। मैं एकदम ऐसे, सर वेरी गुड क्वेश्चन। Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes podcast. In today's episode, we have someone who has had a very illustrious career path himself to now becoming an entrepreneur. We have Ashish Jindal with us joining us today. He is a former IITian who went on to actually do a very unique engineering degree, which I just got to know right now, in pulp and paper technology, if I'm not wrong. Yeah. And after which, he went on to work as a product manager at numerous companies like ICICI Lombard, Pepperfry, Chalo, and today he is the co-founder at Grip Invest, which helps everybody in our country making smart investments in alternative asset classes. And I am really looking forward to this conversation because Ashish's career journey has been really interesting. Everything right from his work in different corporates and startups to building his own startup and also being an avid runner. He has run a couple of marathons, close to about 15. Not that I was trying to flex on his behalf, but there are a lot of other things that we'll get to know about him. Today's episode will help you understand what does it really take to build something of your own from scratch. How can you actually choose what are the right career choices to make? Does it really make a difference if you come from an IIT background? Can you make it big without coming from an IIT per se? And a lot more. So stay tuned till the very end. And without any further ado, let me welcome Ashish Jindal to the Dhairya Decodes podcast. Thank you very much, Dhairya, for having me. Even I was quite excited beforehand, and I was really frightened as well कि क्या पूछ लिया जाएगा कुछ, but hopefully it goes well. It will. I'm quite excited. Likewise, Ashish, and I think जब हम पहले भी मिले थे, obviously I've met you once before this. I think the one thing that really stuck with me और जो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी is I think you're very raw as a person. Yeah. Raw is the first word that comes to my mind, and I think that shows, you know, also or tells a lot about किस तरीके का कोई इंसान होता है, what kind of a background do they come from, what values do they hold. जब मैं generally podcast start करती हूँ, मैं हर गेस्ट से उनके चाइल्डहुड से स्टार्ट करती हूँ और मैं उसका रीजन भी बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप किसी के चाइल्डहुड को और उनके एनवायरनमेंट को नहीं समझते हो या नहीं जानते हो, यू विल नेवर रियलाइज व्हाई दे मेक सर्टेन चॉइसेस इन लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स. एंड व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स तब समझ में आता है दैट इट इज डीपली रूटेड डाउन टू द एनवायरनमेंट यू वर ब्रॉट अप इन, आपके कैसे फैमिली बैकग्राउंड था एंड आप कहाँ से आते हो. बिल्कुल. So let's start with that, Ashish. Sure. थोड़ा बहुत if you can tell the audience आप कहाँ से आते हो, what kind of a family were you brought up in, जिस family से आप आते हो और जिस तरीके से उन्होंने आपको actually बड़ा किया, did it have any impact on how you viewed things and looked at them, especially money, the way the world functions? Sure. Let's start with that. Sure. So yeah, I have same philosophy. It is like one of the things that I also ask people when I am hiring. Okay. Yeah. Background क्या है, because a lot of things are today are based on what you did in the past or what your childhood was, right? Yes. So okay, starting with mine. So I come from a small village in Haryana named Julana, and father is LIC agent from last 35 plus years. Okay. And my mom is a homemaker. Yeah.
I have two sisters, one younger and one older. Then small, quick things. So पापा ऑलवेज बिलीव्ड कि पढ़ाई करवानी है बच्चों की तो गांव में हो नहीं पाएगी. सो ही शिफ्टेड टू द नियरेस्ट सिटी जींद एट अराउंड 6th class. We all shifted to Jeend. I'm telling it was a big change for him to like move cities, right? Like in 2003 or 4, right? Moving away from home and separating out, right, from the joint family. Joint family. Yeah, but he was very clear कि उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी. So my father and mother both are 12th pass. Okay. And because it was a minimum criteria to become LIC agent, that's why he did that. Otherwise, वो भी नहीं कर रहे होते. So we shifted. The whole focus was कि हम पढ़ लें. Now coming to the childhood, right? How it shaped up. So father is LIC agent. Very, very sales driven role, very hard. Coming from those old years, these LIC advisors, agents, insurance people were considered not good because they were selling something that you are getting benefit after एक that. perception था, हाँ. बिल्कुल. So then even then selling, and my father has been consistently from all the years there is this thing called CM Club membership. If you do certain number of insurances per year, you achieve that. Correct. So he has been consistently achieving that. So we have seen all the hardships he has gone through, all the kinds of sales he has done, कैसे किया, क्या किया. तो मतलब बचपन में स्कूल गए हुए हैं और हमको पुश करते थे कि कोई डाउट है तो पूछना. मतलब नहीं भी है तो पूछो तुम. अदरवाइज बाकी बच्चे पूछ नहीं होते. तो हमें एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए उस टाइम से पुश किया जा रहा था कि मैं 6th या 7th क्लास में हूँ, ये ले चेक जा बैंक में जमा करवा दे, ये ला जो सब्जी लिया. तो वेरी नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज एंगल्स. ठीक है कि सब्जी वाले के पास जाए तो 4 जगह पूछ के ही लेके आनी है, एक से नहीं लेनी है, कम करवाना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए, राइट? So I'm a baniya. So typical all those baniya behaviors plus all these additions. But education का emphasis was always there. Yeah, always. My elder sister Himani, she was really good at studies amongst 3 of us. मैं थोड़ा शरारती था, sharp mind, but वो मैं थोड़ा सा, मेरे 90 नहीं आते थे, मेरे 85 आ जाते थे. बहन के 93, 94 अब वो आते थे. She was a district topper in 10th and 12th both. तो वो थोड़ा प्रेशर रहता था, अरे तुम्हारी बहन तो ऐसी है. मैं मतलब शरारती था, पढ़ाई कर लेता था. I think I was very competitive. तो by the time I came to 10th class, तो वो थोड़ा कंपटीशन वाला आ गया था कि करना है, और थोड़ी सीरियसनेस भी आ गई थी. तो काफी पढ़ने लग गए थे. तो तब हो गया था कि 90% के ऊपर ही लेके आना है. तो यूज्ड टू जस्ट ग्रैब एनी बुक, मिल जाए, किसी से पता चल गया कि ये किताब कर लोगे तो 100 नंबर आ जाएंगे. एंड फंडामेंटली 100 आ ही रहे थे हर सब्जेक्ट में. इंग्लिश पे कभी भी कंट्रोल नहीं था हाथ में, तो इंग्लिश ने डुबाया है. 75 नंबर आए थे इंग्लिश में. और आई नाउ आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू just cram all the answers. We never used to understand what is grammar, what is that, right? I agree. I think that was this. पढ़ने के लिए पढ़ते थे, रटते ही थे, I think. Yeah, everything I remember now sounds very fundamental, history, etc. We used to just cram what happened and what not. Yeah. Then my sister elder sister was doing engineering preparation. She took coaching. She tried. She was preparing for IIT JEE. She didn't get in. Then I was also good at math, very normal path to choose कि PCM ले लो, physics, chemistry, math. Biology तो समझ में नहीं आ रही थी इतनी. तो I also went on to that path of engineering. Okay. In 11th. ये आपकी personal choice थी. Yeah, my personal. I was good at it. It came naturally to me कि I will do this. Okay. तो एक बार मेरी बहन ने तो ट्राई कर लिया था IIT JEE का एग्जाम करना, क्रैक. तो पता चल गया था कि क्या चीज चलती है, क्या नहीं चलती है. तो ये घर वाले बहुत क्लियर थे कि कोटा वगैरह नहीं भेजना है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ बहुत सुनने को आता है, राइट? नो नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल हु आर गोइंग, बट मेरे फैमिली वालों ने बोला कि नहीं. तो मैंने फिर 1 साल लोकल कोचिंग ली. 1 साल वीकेंड पे फिटजी जाता था मैं जींद से
दिल्ली। जींद से दिल्ली? जींद से दिल्ली, इट्स 4 आवर ट्रेन जर्नी। सैटरडे सुबह जाता था, वहाँ 6 घंटे क्लासेस ली, फिर शाम को ताऊजी के घर रोहिणी, और फिर संडे को फिर क्लासेस लेके 6 घंटे की, फिर शाम की ट्रेन पकड़ के संडे को वापस। तो पता नहीं कैसे निकल गया वो 1 साल था 12th का। काफी एफर्ट मारा, काफी मेहनत करी, इवेंचुअली क्रैक्ड IIT JEE। तो इनफैक्ट देयर इज दिस थिंग, उस टाइम पे इट वाज 2011, लोगों को ये नहीं पता था IIT JEE क्या है, रिश्तेदारों में क्या, बट ये जरूर पता था कि कुछ तो किया है। तो और लोग पूछते थे, और तेरा ITI हो गया, तेरा IT हो गया। तो these were the kind of even reactions I used to get, but everyone knew कि कुछ तो अचीव किया है, कहीं पे कुछ क्रैक किया है एग्जाम, ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोग आगे बोलते थे, जब मेरा आई फाइनली गोट इनटू IIT रुड़की। आई गोट दिस ब्रांच पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, वेरी नॉट सो नोन। मैंने तो सुनी या इवन मेरे को भी नहीं पता था। करियर कोच हूं मैं, पर मैंने सुनी नहीं है। या आई विल कम टू दैट, बट लोग आगे बोलते थे, अरे बेटा यहाँ आसपास कोई कॉलेज नहीं मिला क्या, वहां दूर जाना पड़ गया तेरे को। अच्छा। तो इतना अनअवेयरनेस था इसके बारे में भी उस टाइम पे। बट एनीवे, आपको तब पता था, मतलब यू ऑब्वियसली न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ IIT टैग एंड व्हाट इट मींस, राइट? बिल्कुल, व्हेन यू वर ऑब्वियसली प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर दैट 1 साल, तो आपको अंदाजा होगा ही। बिल्कुल। तो आई क्लियरली रिमेम्बर, अपना रहता ना एक टारगेट लिख लेते हैं, हाँ, टारगेट लिख लेते हैं। AIR ऑल इंडिया रैंक 100 ऐसे टारगेट था। उसमें मैंने एक लिस्ट बना रखी थी कि यार मैं इतने नंबर लाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा, इतने नंबर लाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा, IIT हो जाएगा, NIT हो जाएगा, ऐसे होते हैं टॉप टियर कॉलेजेस। करेक्ट। मेरे माइंड में था इतना तो अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम्स होते हैं, मॉक एग्जाम होते हैं, 100 चीजें हो रही होती है, राइट? यार इसके नीचे तो नहीं जा रहे हैं। करेक्ट। तो उसके नीचे तो लिखा ही नहीं था वैसे, ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में जाके आपको पता लगेगा कि बुरा हो रहा है। सही बात है, तो पता चल होना है तो आप यू गेट टू नो। या एक्सपेक्टेशन तो आपको पहले से बिल्ड हो रही है, राइट? आप अपने बैच में फर्स्ट आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, बैच में फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो। करेक्ट। टीचर्स भी फिर, हाँ लाइक आई सेड, मैं शरारती था थोड़ा, मैं भी हर तरह के डाउट पूछता था। टीचर भी परेशान होते थे, लेकिन आंसर करते थे क्योंकि पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छी। कई बार बोलते थे, अरे आशीष तेरे डाउट मैं अलग से सोल्व कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि करना भी जरूरी है, ठीक है। सो कमिंग टू IIT, देयर दिस होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, ऐसे रैंक्स आती हैं, ठीक है। पहले में तो मेरी रैंक कुछ 6000 प्लस थी। ओके। IIT की। IIT की। और पहले में कुछ आया नहीं। और कॉन्फिडेंट, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, सब बच्चों की होती है कि बेशक रैंक कुछ भी आई हो, आप ना जब आप भरते हो कि कौन से कॉलेजेस में जाना है, आप हमेशा से IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ये पक्का भरते हो। होना है नहीं। पता है। आप करो यार, क्या पता गलती से नंबर लग जाए, कुछ तो सिस्टम में एरर है, एक उम्मीद होती है, उम्मीद से डाल देते हैं। तो मेरे में मैंने पूरी भरी मेरे ख्याल से पल्प एंड पेपर 95th या 96th नंबर पे थी। अच्छा, ठीक है, कि सारी चीजें भर दी। कुछ चीजें फिक्स थी कि 4 ईयर वाले में जाना है, इन IITs में जाना है, इनमें नहीं हुआ तो फिर आई विल मूव टू NIT। इस तरह से था। आई थिंक फिर काउंसलिंग 2 में ये पल्प एंड पेपर लग गया, तब पता चला था। फिर 1-2 लोगों को फोन किया, किसी ने किया है क्या, टीचर्स से फोन किया, अरे सर किसी बच्चे ने किया है क्या पल्प एंड पेपर? बोलते हैं हाँ बेटा वो किया है, अच्छी इंटर्नशिप लगती है, यूरोप जाते हैं बच्चे क्योंकि पेपर इंडस्ट्रीज वहाँ है, और अच्छा है वो, कर लो आप। मैं बोला इतना सर विदेश जा रहे हैं बिल्कुल कर लेंगे। तो आई थिंक तो उस टाइम पे इतना नहीं था कि IIT ही जाना है, ये था कि अच्छी चीज कर लो कि थोड़ा सा करियर वाइज ठीक रहे। तो जब किसी ने बताया कि हाँ जाओगे, इट्स नॉट लाइक अ वेरी न्यू थिंग, बड़ी पुरानी चीज है, चलती आ रही है, आपको नहीं पता है, बट कागज तो बन रहा है। सिगरेट में भी कागज है, पैकिंग में भी कागज है, हर चीज में कागज है। एंड थॉट की ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट पेपर टेक्नोलॉजी। गोट इनटू IIT रुड़की एंड पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो आशीष, फ्रॉम दिस पॉइंट इतना तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया कि जिस तरीके के बैकग्राउंड से एंड द फैमिली यू केम फ्रॉम, आपने बचपन से इन अ वे अपने फादर को देख लिया था, ऑलवेज हैविंग दैट I would say very sharp focus and a sales driven mindset, because he worked as an agent with LIC and still is working there. That obviously I think in a way or the other we'll come to that point बाद में, but I'm sure उसने आपको भी बहुत कुछ सिखाया होगा very early on. Education was always foremost. आपने IIT भी क्रैक कर लिया,
वी गॉट टू नो कि आपने एक बहुत नीश फील्ड भी चूज की विच इज पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने आईआईटी एंटर किया, पहले 1 महीने का आपका एक्सपीरियंस इन आईआईटी कैसा था? क्या चेंज हुआ? बिल्कुल। सो लाइक आई सेड, पल्प एंड पेपर ब्रांच है, किसने सुना नहीं है? तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे का टारगेट क्या होता है? ब्रांच चेंज। हाँ, करेक्ट। सो एवरीवन who has not gotten A the good branch of branch their of their liking, choice, हाँ. उनका रहता है कि यार पहले साल तो इतना पढ़ूंगा मैं कि मैं ब्रांच चेंज करा लूंगा, मेरे को तो कंप्यूटर साइंस में जाना है। करेक्ट। तो ये रहता है सबका टारगेट। आपको भी करनी थी? बिल्कुल। क्यों? अब यार, अब आप आ गए हो कॉलेज में, अब एक ऐसी ब्रांच है जो आपने नाम ही नहीं सुना। यू विल ऑलवेज ट्राई टू चेंज इट, राइट? यू विल ऑल्सो वांट टू कि अच्छा मैं भी सीएस ले लूं या कोई और ब्रांच ले लूं, केमिकल ले लूं, मैकेनिकल ले लूं, कुछ भी ले लूं, राइट? ये ऐसी चीज तो होगी जो पता ही नहीं है ना। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शंस, मीटिंग सीनियर्स, रैगिंग वैगिंग, ठीक है, होती है? बिल्कुल होती है यार। मतलब आई एम तो क्वाइट ओपनली। इस पे थोड़ा बताओ, क्या कैसे होती है रैगिंग आईआईटी में? आई रियली हैव नॉट हर्ड ऑफ यार इससे। जो सुनते हो ना, सारी तरह की होती है। पीपल गेट यू नेकेड, पीपल गेट यू सब होता है मतलब। गेट टू रन यू नेकेड ऑन द ग्राउंड, सब होता है। ठीक है। यू आर वेयरिंग अंडरवेयर ओवर योर पैंट्स, एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स। ठीक है। मतलब आपकी हुई और आपने की भी है? नहीं, तो हमारी हुई। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था शशांक, वो बहुत ही मैं बोलूंगा समझदार था या क्या था। ठीक है। आप वर्ड कुछ और बोलना चाह रहे हैं। तो वो बोलता तो हमारे यहाँ आईआईटी रुड़की में कॉन्सेप्ट होता था कि अगर रैगिंग हो गई तो फिर आपका वो मेंटर बन गया, सीनियर। अच्छा, हाँ। दे आर लाइक चूजिंग कि अच्छा कौन तुम्हारे अच्छे लोग हैं, थोड़े एकदम फट्टू हैं या कैसे हैं, राइट? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और फिर उसके बाद होती है चापो, बोलते थे हम, चापो। हाँ, पार्टी। अच्छा। चापो वर्ड कैसे आया? चाय पकौड़ी खिलाते थे लोग, तो चाय पकौड़ी चापो, ऐसे तो चापो। तो फर्स्ट थे उसने बोला भाई बढ़िया है, रैगिंग दो, नंगे हो जाओ और चापो मिलेगी। मैं बोला यार ये बड़ा यार हम वैसे ही खा लेंगे यार। बोलता वैसे तो वैसे ही खा रहे हैं। ठीक है। मैं बोला यार मेरे को धीरे धीरे आज समझ में आता है यार, ठीक है ना। मतलब वो बंदा भी जो रैगिंग ले रहा था, राइट, वो यही तो देख रहा है थोड़ा, मतलब इट्स ऑब्वियसली वेरी एक्सट्रीम, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट वो यही देखना चाह रहा है कि यार अच्छा ये प्रेशर डाल रहा है किसी भी तरह का, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू, राइट? आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर रैगिंग, ठीक है, आई एम नॉट एडवोकेटिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि जो मुझे समझ में आया और जिससे मुझे सांत्वना मिलती है, यार वो देख रहा है कितना कूल है बंदा, वेरी वियर्ड वे। ठीक है। हाँ, मतलब सबको अपने तरीके से जो समझ आए। ठीक है। तो वो बोलता है सर एक इंसिडेंट उसका ही बताता हूँ, दोस्त का। तो वो बोलता है कि भाई 4-5 लोग हैं, नंगे हो जाओ। तो सबसे पहले ये नीचे कर देता है, शशांक। ठीक है। बाकी सब सर नहीं बोलता, अरे निकाल, ये खुद बोल रहा है निकाल देना। क्या करेंगे? बहुत ही फनी होता था। तो आई थिंक आई नेवर कुछ नहीं, मैंने नहीं किया कभी भी। मैं तो आपकी रैगिंग पर आपने बोला होती थी क्योंकि फोर्स नहीं कर रहा ना कोई। अच्छा, ऐसा नहीं था? हाँ, बोलते सर नहीं कर रहे सर, नहीं, तो ठीक है फिर चले जाओ, ओके बाय। होती नहीं थी। ठीक है। कंसेंट टाइप्स बोल रहा है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो मेरी नहीं हुई। ठीक है। बट मैं तो इसके साथ रहता था, शशांक के साथ, और फर्स्ट ईयर है, एंड तक फर्स्ट ईयर रहेगा। तो हमारे एग्जाम हो गए फर्स्ट ईयर के एंड के, तब फिर से एक बार पकड़ लिया कि अब तो तुम सेकंड ईयर के हो जाओगे। तो एक दो सीनियर्स ने पकड़ लिया लास्ट डे पे फर्स्ट ईयर के। उसने बोला कि अब नंगे हो जाओ। मैं बोला सर लास्ट डे है। तो कोई नहीं, अभी तो हो ना फर्स्ट ईयर। ये शशांक फिर से। मैं बोला क्या करना क्या है? बोलता तो हमारे क्या होता था वहाँ ना, प्लेग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड था, उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल भी था। ठीक है। 10-11 बजे थे रात के, एग्जाम हो गया था, कैंटीन में बैठे थे। बोलते चलो चलते हैं ग्राउंड में। वो बोला नंगे हो जाओ और राउंड काटो एक। मैंने भी कर दिया फिर। और फिर नंगे हम राउंड काट के आ गए। ऑनेस्टली पर्सनल फीलिंग,
बहुत ही मजा आया। ठीक है, मजा आया, ठीक है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वंस ही इन होगा, आई एम श्योर। एक्सपीरियंस वाइज अगर देखो आप, ठीक है, तो अंधेरा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, वो खुश हो गए, हम खुश हो गए, दौड़ के आ गए, कल पार्टी मिलनी है, ये भी पक्का हो गया, ठीक है। तो विन विन टाइप्स Win-win लगा, situation, ठीक है। बट अगेन अगर उस दिन भी अगर नहीं करनी होती थी, मैं बोल सकता था मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो कोई किसी ने ना सीनियर ने प्रेशर डाला है, इट जस्ट वे ऑफ देम फिगरिंग आउट कूल, वेरी वियर्ड वे। हाँ, ये ठीक है। आपने पूछा था मैंने ली क्या किसी की रैगिंग? हाँ। मैंने रैगिंग नहीं ली किसी की, नंगा करना या कुछ भी, ठीक है। बात करी, ठीक है, फिगर अपना खुद का तरीका फिगर आउट करने का है, तो कूल है नहीं है हमारे साथ, बैठ पाएगा, खड़ा हो पाएगा, वो वाली बात है। मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो लोग बास्केटबॉल जो खेलने आते थे उससे पता चल जाता जो अच्छा खेल रहा है कूल है, अच्छा नहीं खेल रहा तो देख नहीं लेते है, थे, देख ठीक है। तो अपना अपना तरीका है सबका, आई थिंक। फिर हम जैसे हमारा बैच था, एक दो लोगों ने ली होगी, अगले वाले ने और कम ली होगी, तो ऐसे आई थिंक इट केप्ट ऑन डाइंग। वो भी इतना भी नहीं हो रहा था। नहीं होता। बट अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट Advocating, एडवोकेटिंग। हाँ, आशीष is not advocating, right? पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टफ, एंड शशांक, शशांक, ठीक है। yes. तो दैट्स, पर आप ब्रांच चेंज वाली बात बता रहे थे। हाँ, फर्स्ट ईयर में रहता है सबका ब्रांच चेंज करने का। हाँ, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हमने खूब मेहनत करी। मेरे साथ जो भी एक दो लोग और थे, जो मेरा नाम आशीष AASHISH, तो मेरे साथ थे फिर अभिनव, आभास, आदित्य, एवरीवन विद ए, क्योंकि वो रोल नंबर अच्छा, होते हाँ हैं। हाँ, करेक्ट। तो एवरीवन वाज आल्सो ट्राइंग। एक महीने बाद में रियलाइज हो गया ये नहीं होगा। बहुत मतलब एक CGPA सिस्टम होता है 10 आउट ऑफ 10। हाँ, मेरे को फिगर आउट हो गया, फर्स्ट मिड टर्म हुआ था 1-1.5 महीने में, उसमें जो नंबर आए थे कि यार हम ना 7.58 वाले हैं, ब्रांच चेंज में 9+ लगेगा, हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो। रियलाइजेशन आ गई थी कि नहीं ये, एक्सेप्टेंस, हाँ, कि देखो ऑलवेज पिक एम्बिशियस थिंग, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है तो उसमें हैप्पीनेस नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो चेंज द गेम, और ठीक है, तो वैसा सीन है। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर। या तो आपने तभी समझ लिया था चेंज नहीं होगा ब्रांच, विच इज ओके। और फिर हम लग गए थे कि अच्छा और क्या है अब करने को, पढ़ाई तो होगी। अब आई ऑलवेज हैड लाइक 7 to 8 के बीच में, आई थिंक आई एंडेड अप विद 7.5 CGPA ओवरऑल, व्हिच आई थिंक इज रियली ग्रेट। हाँ, फिर हमने जो भी दोस्त एक दो और साथ में, ये नहीं होना, ठीक है, और क्या है, फेस्टिवल होते हैं, फेस्ट, कल्चरल फेस्ट हो गया, टेक्निकल फेस्ट हो गया, जहां मौका मिले फिर वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं। सो वी वर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। तो कॉलेज था, वो कॉलेज एंजॉय कर रहे थे। खेल नहीं पाए थे इतना, जैसे 10th 11th 12 हमेशा ही आप कॉम्पिटिटिव थे, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, एवरीथिंग आई वाज डूइंग। मुझे एक बात बताओ आशीष, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत कम लोग ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कर पाते हैं टू लिव द लाइफ ऑफ एन IITian एंड बी ऑन कैंपस। आपने 4 साल एक IIT कैंपस में बिताए हैं, IIT रूरकी। आई वांट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, द एनवायरनमेंट, द प्रोफेसर्स, जो एक यू नो जिस तरीके के सीनियर्स आपके होते हैं, लाइक यू सेड फेस्ट होते हैं, क्लब्स एंड चैप्टर्स होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओवरऑल what kind of a life have you had in the 4 years, अगर आपको sum up करके मुझे बताना हो, from academic angle, non-academic angle, everything? पढ़ाई would be maybe 20%, जो syllabus है। उसके अलावा the interaction, the kind of people, the diverse people you are meeting, right? That is another 20-30%. Okay. Then these experiences, कभी fest आ गया, कोई event आ गया, right? If you are putting an effort to become part of the organizing committee, right, you are getting to learn a lot. कोई लोग sponsorship team में जाते हैं, they are going to banks, local bank जो आसपास हैं, डोमिनोज पे जा जाके हम भाई पैसे दे दो या कुछ तो कर दो, डोमिनोज पिज्जा खिलाएंगे, राइट? तुम्हें चांस मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी। So that is another 20%. स्पोर्ट्स रहता है, you get to be disciplined. जैसे मैंने NSO ले रखा था, स्पोर्ट्स में नंबर लाने हैं, वो अगर वहाँ पे 9 out of 10, 8 out of 10 लेना है तो आपको थोड़ा बहुत physically fit भी रहना पड़ेगा। Right. I think it's a mixture of all these things. So if a person who is coming from a village or a tier 2 city, right, and getting this exposure in a college, right, तो पढ़ाई के अलावा there are so many things.
I have so many friends who were really great at education part, Hmm. who are doing lot of good things, but I would say एक holistic experience is this. Correct. ठीक है. Overall development हर I angles. would say they also enjoyed a lot. I also enjoyed a lot. But I would say that this overall experience is really nice if someone can have it. Then obviously the friends and the relationships that you build with them. Right. I think those are the oldest relationship now you would have, right? Yeah. Right. So that's the best thing about college. Got it. And it's irrespective of IIT, non-IIT. हाँ, that is, I think, मतलब that is my opinion. आप जिस भी कॉलेज में जाते हो, अल्टीमेटली उस कॉलेज का एक एंड एक्सपीरियंस या कंक्लूजन क्या होगा इज कम्प्लीटली इन योर हैंड. बिल्कुल. बिकॉज यू कैन गो टू एनी, आई मीन मुझे एक चीज आपसे एक्चुअली पूछनी है, बिकॉज मैं तो आंसर नहीं कर सकती. आपको क्या लगता है हर IITian टॉप पे जाता है या सक्सेसफुल होता है इन लाइफ? जरूरी नहीं है. नहीं ना. नहीं. So that itself proves that just because आप IIT गए मतलब it's not a metric और doesn't define कि आप पूरी लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे. बिल्कुल. वैसे ही अगर आप किसी tier 2 कॉलेज में भी गए, लेट्स से जिसका नाम भी मैंने नहीं सुना, बिल्कुल. पर अगर उधर आपने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज आपको दिए गए थे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया and you make the most out of it, you can reach somewhere in life where somebody else is also not बिल्कुल. there. मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ हाँ, इसको. बताओ. ठीक है. IIT क्रैक करना इज बेसिकली कि आपने वो जो 11th 12th है उसका और थोड़े से 1-2 साल ऐड कर लो आप. हाँ. कि आपने उन 3-4 सालों में कितनी मेहनत करी. हाँ. एक बार में. ठीक है. डिसिप्लिन रहे, मेहनत करी, आपने प्रूव कर दिया एक बार में कि यार मैं मेहनती हूँ और कर सकता हूँ ये. आई कैन Right. क्रैक मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट Exams, एग्जाम्स, yeah. राइट. देयर आर मेनी बट इट इज आल्सो वन ऑफ देम. Yeah. कि मैं कर सकता हूँ ये. Correct. ठीक है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं. सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, पेरेंट्स की है. ठीक है. इट्स आल्सो मनी गेटिंग स्पेंट, टाइम, The teachers who teach you, lot of बहुत things, सारे, right? हाँ. There are people who maybe did not get that chance. Correct. Maybe didn't get the right teacher, maybe didn't get the right opportunity, या नहीं बैठा या उस एग्जाम डे पे कुछ हो गया, right? हाँ, हाँ. They are getting a tier 2 college. हाँ. बेसिकली उनका एक वो टिक मार्क नहीं हुआ ना कि Right. आप मेहनती थे. पेपर पे नहीं आया. हाँ. इन लोगों का आ चुका है. Correct. तो अब इनके लिए बेसिकली क्या है ना, दे नाउ IITians नाउ हैव अ बोलते हैं ना इंग्लिश में फुट इन द डोर. हाँ, they have a foot in the दे हैव फुट इन द डोर. हाँ. दे आर नाउ गेटिंग द फर्स्ट Access easier. एक्सेस वेरी इजीली. Correct. ओके. उसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आप बोलोगे वो तो इंटरव्यूज में तो आएगा ही ना. Right. दूसरा बंदा है जो टियर 2 से है, टियर दूसरे कॉलेज से है, राइट. हाँ. वो उसने अगर वहां पे बहुत मेहनत करी, जो मैं आपको एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रहा था, Correct. उसमें मेहनत करी है, हाँ. उसके लिए हो सकता है 20 मेल की जगह 200 मेल लिखने पड़ेंगे. हाँ. ठीक Agreed. है. पर व्हेन समवन इज इनसाइड दैट रूम विद द इंटरव्यूअर, वहां पे तो सब बराबर हो गया ना. Then जो you're on the एग्जाम same देने level. वाला है, हाँ. आपको एल्गोरिथमिक क्वेश्चन देने वाला है, कुछ भी करने वाला है, आप बात कैसे करते हो, वो तो उस मोमेंट में वो डिसाइड कर रहा है. Correct. ठीक है. और जब ये बंदे अब दोनों जॉब पे आ गए हैं, हाँ. बराबर है ना, फिर तो वो सही आपके बात साथ ही तो बैठ के काम कर रहा है, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. दूसरा व्यक्ति अगर ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको चांस मिलेगा, Right. ये करेगा उसको मिलेगा. Correct. देयर इज अ सिनेरियो कि अगर उतना आईक्यू नहीं है या वो नहीं है, वो अलग बात है. उसको फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज आगे आगे भी नहीं मिलेंगी, फिर अकॉर्डिंगली काम मिलता है. आई थिंक दैट्स द तो अनफेयर एडवांटेज आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सेस के टर्म्स में I really think it's first access के basis पे है, that when I go to someone and I introduce myself, हाँ, I'm from IIT IIT, Roorkee, हाँ. I have their attention in that very one line, करेक्ट. right? एंड अच्छा, दैट यू आर ऑब्वियसली एक्सेप्टिंग कि वो बिल्कुल, होता है. बिल्कुल. तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, कोई ना, अब इतनी अवेयरनेस सबको पता है. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. मेरा ब्रदर इन लॉ है, कुछ तो स्कूटर रिलेटेड इशू हुआ था, और उसको थाने जाना पड़ गया था. स्कूटर मेरा था, थाने उसे जाना पड़ गया था, काम हेल्प करा रहा था मेरी. तो ही इज फ्रॉम IIT रोपर. अच्छा. तो एंड ही वाज देयर. मैंने फोन किया, क्या चल रहा था? सारे IIT है ना आपके फैमिली में? हाँ, क्या चल रहा है रजत? हिज नेम इज रजत. हाँ. तो जीजू बिठा रखा है यार, कुछ कर नहीं रहे हैं. आपने फंसा दिया आज. मैं बोला यार करा दे, कोई नहीं, थोड़ी सी हेल्प करा दे आज. मैं था नहीं वहाँ गुड़गांव में उस दिन. ओके. थोड़ी देर बाद जब बात हुई उसकी थानेदार से या जो भी था वहाँ पे, वो बोला कौन हो आप, कहाँ से आए हो, ठीक है. और बोलता मैं ऐसे ऐसे, मैं IIT रोपर से. बोला अरे 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 आओ आओ बैठो. माहौल सा बदल गया सडनली.
सडनली माहौल बदल गया उसके लिए, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो भी काम था वो सोल्व हो गया। बोलता अरे हाँ, मतलब कोई ना कोई आपका जानकार इधर उधर कोई तैयारी कर रहा है, जब उसको पता लगता है ये बंदे ने क्रैक कर रखा है तो उसको लगता है हाँ यार बहुत एक डिफिकल्ट चीज क्रैक कर रखी है। तो दैट्स व्हाट इट शोज, दैट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। उसके बाद फिर आप ही हो एट द एंड ऑफ द डे, क्या काम कर रहे हो, क्या मेहनत कर रहे हो। पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसके बारे में मैं और बाद में पूछूंगी ऑफ द कैमरा। पर मुझे ये जानना है कि व्हेन यू डिड ऑल ऑफ दिस, आपने पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी वाली वो स्पेशलाइजेशन ली। व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज आशीष, आपने आई थिंक उस कोर फील्ड से रिलेटेड तो कोई जॉब की नहीं। बिल्कुल। जो जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल और जितनी रिसर्च की है, यू मूव्ड इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट व्हिच इज अ वेरी न्यू एज करियर इवन नाउ। तो थोड़ा बहुत मुझे आप बताओ कि वो ट्रांजिशन सबसे पहले कैसे हुआ? आपके दिमाग में आया भी कैसे कि इस फील्ड में जाना है? बिकॉज चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यू नो या लेट्स से डेवऑप्स इंजीनियर, ये सारी टेक कॉमन करियर पाथ्स है, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हाउ डिड दैट हैपन आफ्टर पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी? तो कॉलेज का ही एक मोमेंट बताता हूँ। सो विद ऑल दिस कोर फील्ड्स, कोई भी केमिकल, मैकेनिकल, राइट, एंड दिस इज आल्सो स्पेशलाइजेशन ऑफ केमिकल, आई नो, ठीक है। तो हमारा एक होता है इंडस्ट्रियल टूर, जो विजिट्स होती हैं, हाँ, सेकंड ईयर के एंड सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है। करेक्ट। तो हमारे बैच वालों ने ऑर्गेनाइज किया, वी वेंट टू बॉम्बे एंड पुणे। तो पुणे में एक बिल्ट है और बॉम्बे में भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज। सो एक इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज किया। होता है सबका कि फन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल टूर घूम लेंगे, 2 टीचर भी होते हैं साथ में, ठीक है। नाउ वी वेंट देयर। एक तो वहां पे जब हम गए किसी भी इंडस्ट्री में, बहुत ही स्मेल आती है इंडस्ट्री में, नॉर्मल बात है, करेक्ट। बट वो रियलाइजेशन उस दिन हुआ हमें, ठीक है, यार यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो उस दिन वो जो भी 1-2 दोस्तों वो तो ऑन साइट जॉब्स ही मोस्टली होती होंगी पेपर एंड पल्प वाली कोर इंडस्ट्री में। कोर इंडस्ट्री यू हैव टू बी इन द जोन, इन द एरिया। आप बेशक एसी ऑफिस में बैठते हो, बट आपको प्लांट में तो जाके देखना रहेगा, करना रहेगा, राइट? बेटर फॉर यू, राइट, इफ यू आर डूइंग इट। उस दिन हमने डिसाइड कर लिया 1-2 दोस्तों ने, कुछ हो जाए ये नहीं करना, ठीक है। दैट वाज द मोमेंट। उसके बाद हमने फिर पढ़ाई वाला वो 20% पे ही सीमित है फिर तो। अच्छा, हम वो नहीं बढ़ाया। वो तो कर ही रहे हैं हम। वो भी था कि ना 7.5 तो लेना ही है। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट है। उसकी भी अलग छोटी सी साइड स्टोरी ये है कि इंजीनियरिंग में आपको 7-7.5 सीजीपीए लाना है ना, तो आपको एग्जाम्स के 1-1.5 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप 15 दिन पहले करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 महीने करोगे तो 9 आ जाएगा, और एग्जाम के एकदम 1 रात पहले करोगे तो जस्ट पास हो गए। सुबह वाले का उसके सामने वाला भरोसेमंद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सीजीपीए का, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, तो फोकस उस पे उतना ही था, कोई बढ़ाया नहीं कि करना है, इंटर्नशिप लेनी है, कुछ नहीं। फोकस ये हो गया कि और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर बनाओ, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। इंग्लिश वाज ऑलवेज अ चैलेंज। We were working on solving English. We were having all the GMAT के cards, CAT के card, vocabulary English words vocabulary, हाँ. We were putting lot of effort. कि फिर और क्या है आपके पास? कोडिंग का भी सोचा, कोडिंग करें क्या? रियलाइज कि नहीं हो पाएगा कोडिंग भी, एटलीस्ट माय केस में को लगा नहीं हो पाएगा। कोडिंग नहीं है, कोर नहीं है, फिर बचा क्या? ऑपरेशंस के रोल आती थी, ऑपरेशंस की कंपनियां। तो तब ये फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरह की कंपनीज आने लग गई थी, जो ऑपरेशंस रोल के लिए भी हायर करते थे, ऑपरेशन मैनेजर बोलते थे। अभी बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन है। हाँ, तो तब आई थिंक इट वाज नॉट वेरी कॉमन। उस एग्जाम उनके आस्क क्या होती थी कि पहले जीडी होगा। जीडी इज अ गेम ऑफ इंग्लिश। यस, बातें करना, अच्छे से टॉपिक समझना, जनरल अवेयरनेस। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में थोड़े बहुत पजल्स वाले क्वेश्चन, तो पजल्स की गेस्टिमेट की तैयारी कर लो। और फिर होता था एचआर राउंड कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन 5 इयर्स। तो ये था। तो फिर हम उस डायरेक्शन में ही लग गए। ओके, कि हाउ डू यू बिकम एम्प्लॉयबल एंड सोल्व फॉर थिंग्स। 2 साल बाद जॉब करनी, यू वर क्लियर अबाउट दैट, जॉब करनी है वो क्लियर था। बट अब जॉब को अच्छे से इजीली मिल जाए उसके लिए क्या लगेगा? बैक ट्रैक कर लिया, इंग्लिश लगेगी, कम्युनिकेशन लगेगा, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लगेंगे, किसी फेस्ट में आपके पास सर्टिफिकेट होंगे ऑर्गेनाइजिंग के, वॉलंटियर के, राइट? फॉर्मूला है, फिक्स है। करेक्ट। कि जितना ज्यादा लिखा होगा, बढ़िया करा आपने, ये करा, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, इंटरव्यू में बात करने को चीजें होंगी।
तो इंटर्नशिप लाइक यू मेंशन अबाउट यू कि आपने 25 इंटर्नशिप की थी, हमारे माइंड में था हम सिर्फ थर्ड ईयर के बाद करते थे। मैंने एफर्ट मार के सेकंड ईयर के बाद भी इंटर्नशिप करी। अच्छा। एक कॉलेज के अंदर एक स्टार्टअप कर रहा था एक सीनियर, उसके साथ इंटर्नशिप कर ली। मेरा हमेशा गोल ये था, सर आप कुछ भी काम दे दो मैं कर दूंगा। उसने सबसे डिफिकल्ट काम दे दिया, बोलता मीम बनाने हैं तुम्हें सोशल मीडिया पे। मीम बनाने हैं। तो 2012 में इफ यू रिमेम्बर दे स्मॉल स्मॉल इमेजेस वाले मीम्स आते थे, ठीक है, इफ यू डू दिस यू आर दिस, करेक्ट करेक्ट। तो वो तब जस्ट वो स्टार्ट होने लगा था मीम कल्चर। जैसे बेवकूफ.com टी शर्ट्स और ये सब बेचता पोस्टर्स, तो उसका स्टार्टअप था अंकित अग्रवाल madmeals.com। ओके। मैं बोला सर बताओ काम होता है मीम बनाने में। बोला सर अच्छी बात है, मैं सीख जाऊंगा अब। वो किया, फिर एक और इंटर्नशिप ढूंढी, गुड़गांव में एक इंटर्नशिप करी buyandbrag.com पे। ओके। अगेन वहां पे भी सीखने को मिला, ऑपरेशंस ये वो। गुड़गांव आए और 4 लोगों से बात करी, स्टार्टअप था वो भी। फिर सेट हो गया तो कि स्टार्टिंग से ही गुड़गांव में रहे हो मतलब बहुत, मतलब हाँ इन चीजों के लिए, ठीक है। तो उस सेकंड ईयर की इंटर्नशिप के बाद फिगर आउट हो गया कि यार ये ई कॉमर्स कुछ तो बड़ा होगा। इट वाज 2012, वी वर सेलिंग दीज होम फर्निशिंग आइटम्स और ये सब चीजें ऑनलाइन। एंड उसी टाइम पे अमेजोन एंटर्ड इनटू इंडिया। आई एक्चुअली गॉट टू नो, अच्छा यार ये इस तरह से चलती हैं चीजें। हम कॉलेज में रह के एज स्टूडेंट्स मंगाते थे चीजें फ्लिपकार्ट से, इधर उधर से। IRCTC पे टिकट खरीदना इज ऑनलाइन एक्सपीरियंस, राइट। तो ये आई एक्सपीरियंस इट, मुझे लगा यार ये बड़ा सही चीज है, ये इसी साइड में कुछ करना रहेगा इवेंचुअली। तो जब फोर्थ ईयर की जब प्लेसमेंट्स आई, ठीक है, तो स्नैपडील आई, फ्लिपकार्ट आई, ठीक है। कई कंपनीज में CGPA मेरा 7.5 था, उस चक्कर में नहीं हो पाया। कई चीजें, कई कंपनियां सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढने आती थी क्योंकि बड़ी टेक ड्रिवन कंपनीज थी। करेक्ट। इवेंचुअली फिर आई ICICI लोम्बार्ड। और ICICI लोम्बार्ड का हायरिंग का क्या फंडामेंटल था कि वो मैनेजमेंट ट्रेनी ढूंढ रहे थे। तो मैनेजमेंट ट्रेनी इज यूजुअली अ पोस्ट दैट दे हायर फ्रॉम MBA कॉलेजेस। बिल्कुल। बट उनका कॉन्सेप्ट था कि यार 1-2 साल से वो ट्राई कर रहे थे कि यार IIT से भी बच्चे ले लेते हैं। दे यूज्ड टू गो टू एवरी IIT, चेन्नई, बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब वही 6 मंथ्स वाली इंटर्नशिप होती है ना? इंटर्नशिप नहीं, मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से डेजिग्नेशन है। ओह, ठीक है, कि आपका एंट्री लेवल जॉब है जो MBA का, वो है मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। तो वो IIT से बिहार कर रहे थे। समझ गए। तो आप सोचो, मैं गया इंटरव्यू में, all the preparation that I had done till date met that moment. पापा LIC एजेंट, लिटरली मैं वही अभी कनेक्टर बोलने वाली थी, सेल्स, GD की प्रिपरेशन हो रखी है, कम्युनिकेशन सेट है, कल्चरल क्वेश्चन सेट हैं। मैं बता रहा हूँ एक मोमेंट था उस इंटरव्यू में, ठीक है। मैंने ना क्वेश्चंस लिखे थे कल्चर वाले, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, 5 ईयर गोल्स, ये लाइन से क्वेश्चन लिखे हुए थे, ठीक है। और वो आंसर भी कर रखे थे अपन ने, रट्टे तो सब मारे हुए थे। सर ने पूछा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, मैं बोला सर, व्हाट आर योर वीकनेस सर, डन। अब देख रहे हो, अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अंदर से खुशी बहुत हो रही है, ठीक है, कि यार तो सिलेबस से आ रही है चीजें, ठीक है। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा, हाउ डू सी यू ग्रोइंग इन नेक्स्ट 5 years विद द कंपनी, आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है, MBA करोगे। अच्छा, मैं और ये अगला ही क्वेश्चन था मेरी लिस्ट में। मैं एकदम ऐसे, सर वेरी गुड क्वेश्चन, आई सेड दिस, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक मोमेंट में लूज हो गया, मैं इतनी, मतलब आप ओवर एक्साइटेड कि सिलेबस से इतना, मतलब जो बनाया उसी से, अपना ही सिलेबस वही छप रहा है। आंसर्ड एवरीथिंग, मतलब वो बाहर आके ना इंटरव्यू से वो होता ना कि ये तो हो चुका है, मतलब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कि अब ये चल रहा था माइंड में, जाना है क्या, बॉम्बे जाना है क्या। पापा भी तो इंश्योरेंस कर रहे थे, मैं भी यही करूंगा क्या। मैं, ऐसा तो कुछ ऑप्शन था नहीं हाथ में, बट वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई गॉट। तो लोम्बार्ड में एंट्री मिल गई। तो द मैनेजमेंट ट्रेनीज वो हायर कर रहे थे, जस्ट बिकॉज आई हैड डन internship in e-commerce company, तो all the HODs were looking at the profiles, ठीक है, कौन क्या लेगा, सबको रिज्यूमे चले गए होंगे। तो जो ICICI लोम्बार्ड का ई-कॉमर्स, ई-चैनल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट चला रहा था, उसने देखा यार इस लड़के का एक्सपीरियंस है, उनको तो समझ लो रैंडमली चूज कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके एक्टिविटीज में क्या लिखा है, क्या किया है। उस
उन्होंने देखा कि यार इसने कुछ ई कॉमर्स में कर रखा है, उसने मेरे को ई कॉमर्स चैनल में ले लिया। हाँ। तो मेरा जब आया कि आप ई चैनल में आ गए हो, ये आ गया है और बॉम्बे आ जाओ इस तारीख को, तो वेंट टू बॉम्बे। तो दैट्स हाउ आई गोट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो जो प्रोफाइल फिर इवेंचुअली बन गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद हुआ होगा पर ये। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज लाइक अ लेवल, मतलब हायरार्की लेवल वाइज वो बस एक रोल का नाम है। हायरार्की लेवल वाइज मैनेजमेंट ट्रेनी था। Got it. डेजिग्नेशन वाइज मैं था प्रोडक्ट मैनेजर ई चैनल। अच्छा, बिगिनिंग में ही, मतलब बिगिनिंग फर्स्ट में में। हाँ। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं होता था, 2015 की बात है, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट तब आपको पता नहीं क्या था है, ये कि बड़ी चीज है छोटी चीज है, नहीं पता था। हाँ। खुश थे मैनेजर लिखा हुआ है, इतने में खुश थे। फिर जब 2 साल बाद सीनियर्स के एमबीए जिन्होंने कर लिया है, फोन आता है एक बार, अरे आशीष। मैं बोला हाँ सर कैसे हो? अरे तू प्रोडमैन में कैसे आया? मैं बोला सर प्रोडमैन क्या होता है? अरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मैं बोला सर इतना कूल जॉब है क्या ये? प्रोडमैन। तो आई थिंक थोड़ा रियलाइजेशन तब होने लगा कि अच्छा, बट वी आर इनटू हाउ पीपल आर परसीविंग इट, राइट। अदरवाइज, क्योंकि व्हेन यू आर इनटू इट, यू आर वर्किंग ऑन डे टू डे challenges that you are solving। आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड ज्यादा इन रोल्स में नहीं थे क्या तब, एट दैट टाइम? वेरी फ्यू? नहीं थे, कोई भी नहीं थे। ओके। इनफैक्ट जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में गए थे तो आई वाज क्वाइट लकी कि हम 2 लोग थे, एक आईआईटी बॉम्बे का था, एक मैं था। हम दोनों प्रोडक्ट मैनेजमेंट के चूज हुए वहां पे। हमारे जो मैनेजर के मैनेजर थे अक्षय दिनेश सर, उन्होंने बोला कि तुम लोग 1 महीना समझो बिजनेस, और 1 महीने बाद फिर तुम्हारा क्या काम करना रहेगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत जो उसने थोड़ा प्रिपेयर किया, थोड़ा मैंने प्रिपेयर किया। उन्होंने फिर कुछ क्वेश्चन पूछे, अच्छा एसईओ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आंसर कर दिए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा 2 ऑप्शन है, एक बंदा ऐप देखेगा और एक बंदा ये डेस्कटॉप देखेगा। ओके। तो मैं इतनी से पहले कुछ बोलता, दूसरे बंदे ने बोला डेस्कटॉप लेना है मुझे। मैं बोला ठीक है मैं ऐप ले लूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आई गोट वेरी लकी दैट ही चोज डेस्कटॉप, आई गोट ऐप। आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट अबाउट ऐप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप साइड व्हिच आर वेरी नोन। करेक्ट। ऑन द अदर एंड मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐप का सीखना पड़ा। एंड दीज आर द टाइम्स जब housing.com की वेबसाइट आती थी, बड़ी देखते थे लोग, देखते थे अरे कितनी सुंदर वेबसाइट है, और बाकी इतनी वेबसाइट्स, मटेरियल डिजाइन कुछ नोन नहीं था लोगों को। तो मैंने तो काफी सीखा। आई वर्क देयर फॉर अ ईयर। आई वाज लकी दैट मेरा एक मैनेजर जस्ट हायर हुआ था, अक्षय दिनेश सर ने मेरे स्किप मैनेजर हो गए थे। ध्यानेश गोरे आए थे, ही वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टअप बैकग्राउंड, हंगामा वगैरह से। मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे। वेरी ग्रेट मेंटर। राइट। मोबाइल ऐप सीखा, ये सीखा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझ में आई। फिर उसके बाद आई वेंट टू पेपरफ्राई, गोट इनटू लाइक कोर प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड सो फोर्थ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो मतलब इफ आई हैव टू समराइज, ऐसा बोला जा सकता है दैट यू रियलाइज्ड कोडिंग करनी नहीं है, कोर में जाना नहीं है, ऑपरेशंस थोड़ी समझ में आ रही थी, तो यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर दीज रोल्स, पूरी प्रिपरेशन की आपने, एस्टिमेट्स की, कम्युनिकेशन की, एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जस्ट सीम टू फिट। तब आपको पता भी नहीं था आपका रोल क्या है। बिल्कुल। बाय द टाइम आई थिंक आप निकले हो गए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, आपको समझ में आया होगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप कर भी रहे हो। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन यू मेड द स्विच इतनी जल्दी 1 साल में, व्हाई डिड यू डिसाइड टू मूव फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड? गॉट इट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग question, okay, and how it ties back to like starting up today, right? That I'm a co-founder. Yeah. I think there was always a zeal to start something. तब से Okay. ठीक है. So even on the weekends in my first year of the job, right? I used to go to some senior. Again that senior I worked with in college. अच्छा भाई. जो टी-शर्ट बनाते थे, अंकित अग्रवाल सर. वो बॉम्बे में थे लकीली। वो अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। He was making something around रेड बस टाइप्स कुछ बना रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, कि बॉम्बे से शिरडी बसेस जाएंगी, और he was building some business। मेरा बहुत एंथु था कि यार कुछ सीख लें। अपने सीनियर थे, मैं बोला सर कुछ बना रहे? बोलते हाँ। मैं बोला सर मेरे लिए कुछ है? बोलता क्या कर रहा है तू आजकल? मैं बोला सर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपकी ऐप तो होगी। मैं बोला सर मैं ना वीकेंड पे आ जाया करूंगा, आप मुझे कुछ मत देना, बस आपके साथ बिठा लेना।
कोच चुका हूँ, उसने हाँ कर दिया, कुछ ना कुछ काम दे देता था, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, समझता रहता था क्या चैलेंजेस हैं, पीपीटी बन रही है, कुछ हो रहा है। तो आई थिंक वो हसल जो थी कि कुछ करना है इवेंचुअली, वो चल रहा था गॉट इट लोम्बार्ड में भी। इसलिए जब 1 साल हो गया, ये रियलाइजेशन हुआ कि यार अगर कुछ इवेंचुअली खुद का कुछ बनाना है टाइप है, तो यू नीड टू बी क्लोजर टू स्टार्टअप्स। तो देन मूव टू pepperfry.com। ये आपको जॉब कैसे मिली थी? pepperfry.com की क्या हो गया? बहुत इंटरेस्ट सारी, मतलब आई थिंक बी आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड आई हैव बीन वेरी वोकल, लाइक यू सेड आई एम रो, राइट? आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन Helped you, yeah, I'm एवरीथिंग। sure. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना। या तो आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू स्विच कंपनीज टू गो टू दिस स्टार्टअप ओनली, जो ये बस To your वाला friend's स्टार्टअप था। startup. हाँ, ठीक है। बट जब मैंने रिजाइन कर दिया, राइट, और मेरे पास एक और जॉब ऑफर था हाथ में अच्छा। उस टाइम पे, ठीक है, हंगामा से था शायद। तो मेरे मैनेजर को पूछा, सर नॉर्मली ऐसे मतलब डिमांड तो है ही। लग गई है नौकरी हंगामा में, जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो ठीक है, ओके, ध्यान रखना अपना। तो ही वाज क्वाइट हेल्पफुल कि लग गई तो क्या करेगा, लड़की को रोक तो नहीं सकते। सही बात है। तो वो एक था, बट मेरा मन बहुत रोक तो सकते हैं, कंपनीज को रोकना आता नहीं है। अच्छा, चलो मेरा मन बना रहा था स्टार्टअप वाला। घर वालों को भी बताया था कि मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ, तो देख ले बेटा। मतलब उनको कुछ समझ में आता था तब अबाउट नहीं आता था, नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। मैं तो ठीक है। तो अब ये हो गया क्लियर, छोड़ रहे हो, 2.5-3 महीने का नोटिस पीरियड है, सर्व कर रहे हो। तो एक वहां पे वीपी ऑफ कस्टमर्स ऑपरेशंस होती थी, ठीक है। तो उनसे बात हो जाती थी मेरी। अब सोच रहे हो, मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो वीपी, लेकिन बात हो जाती थी। मैं ऐसे मैम और मैम क्या कर रहे हो, और वो बहुत बड़ी सीरियस मैम थी, वो सब डरते थे। ये कौन सी कंपनी में? ये ऐसे लोम्बार्ड की बात है। ओके। तो मैं बोला मैम ऐसे ऐसे मैं स्टार्टअप में जा रहा हूँ, मैं तो मैं अपनी धुन पे था। समझा उन्होंने, ठीक है। उनका ये रिएक्शन, ठीक है। मैं बोला क्या हुआ मैम? तो नहीं, थोड़ा बैकअप भी रखो। मैं बोला फिर आप बताओ, बैकअप आप बताओ। तो ठीक है, मैं तेरे को कनेक्ट कराती हूँ pepperfry.com पे किसी से। ऐसे बोल दिया उन्होंने? हाँ। अब मैं बोला बिल्कुल, कनेक्ट कराया, एक मेल डाल दिया। दीपक, You knew of pepperfry.com as a company and that हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंदर उस टाइम उन्होंने शायद सीरीज बी उठाया था, काफी अच्छा कर रही थी कंपनी उस टाइम पे, काफी एड्स भी रहती थी बॉम्बे में। और pepperfry.com बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने मेल डाला, कनेक्ट कराया। वो ही इज वेरी प्रोएक्टिव, प्रोडक्ट वाले सारे प्रोएक्टिव होते हैं मेरे को लगता है। तो दीपक शर्मा मैनेजर थे मेरे उस टाइम पे, ही वाज लीडिंग प्रोडक्ट एट पेपरफ्राई। बोलते आजा इंटरव्यू के लिए कल। मैं चला गया। आई थिंक वो एक राउंड ही हुआ, उन्होंने उसी में बात करी, उसी में परख लिया जो भी था। मतलब मुझे आज लगता है कि मैं तो नहीं हायर करता, मुझे वो उन्होंने कर लिया था। आया, हो गया मेरा उसमें। तो that's the story of how I got into Pepperfry। तो फिर मैंने वो ऑफर भी छोड़ दिया। फिर something happened, this startup did not work out in next 1.5-2 months। कुछ तो हुआ कि founders separate हो गए, और वो भी नहीं चला। एंड मेरे पास Pepperfry का ऑप्शन था, फिर मैं वहां चला गया। वेरी इंटरेस्टिंग। या पर अगर आप देखने जाओ तो आपको आपकी वो जो भी वीपी थी कस्टमर वाली, उनको बहुत मतलब थैंक्स तो बोलना चाहिए। मतलब मैं तो आज मेंशन करके मैं भी आज भी थैंक्स बोल रहा हूँ, पर पता नहीं, मैंने 1-2 बार ट्राई किया फोन करने का, शी इज बिजी और समथिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। But- आप भी बहुत बिजी हो गए अब तो, ठीक है। बट थैंक्स टू हर अगेन, इफ शी सीज इट, ग्रेट। ग्रेट। नहीं बट इससे मैं एक चीज सोच रही थी कि उस टाइम पे अगर आप ये नहीं बोलते उनको कि आप बताओ फिर क्या करना है, तो फिर वो फिर आगे से नहीं बोलती बिल्कुल कि चलो मैं आपको कनेक्ट करवा देती हूँ। दैट्स व्हाई टिल द टाइम यू डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। ऑलवेज नो, क्योंकि इंसान ना ही बोलेगा ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे पापा ने ये बोला है, जब तक तू पूछेगा ही नहीं तो आएगा कैसे। सही बात है। तो दिस स्मॉल थिंग ना, इट हैज वर्कड सो मेनी टाइम्स। आप मेस की लाइन में खड़े हो, एक गुलाब जामुन मिलना है, आप जब तक पूछो, आपका मन तो है, सबका मन है दूसरा गुलाब जामुन खाने का, वो छोटी सी चीज है वैसे। सही बात है। तो हम बोलते हैं अरे भैया डाल दो, ठीक है। तो फिर वो देखता है, डाल देता है। फिर हम भी अब
अगले फिर से फ्राइडे को भैया डाल दो, उसमें भी परख लिया, ये तो हर बार का हो गया अब। हाँ। तो बोलता है आखिरी में बचेगा तो दे दूंगा। आखिरी में बचता ही हमेशा। हाँ। तो जब मैच बंद होने वाले होगे तुम, तब जाके तब पता चल गया एक क्या, तो 5 लेके आ सकते हो। सही बात है। नो बट आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लाइक आई सेड, इससे यही समझ में आता है दैट समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू, और कभी कभी आपको खुद भी क्रिएट करनी पड़ती, कभी कभी आपको एटलीस्ट डोर नॉक करना पड़ता है ताकि कोई आपकी हेल्प तो करे। I truly believe that. Otherwise, no one is Nobody is going to, हाँ, give you हाथ upfront में या आके अपने तो आप कोई से अपफ्रंट नहीं कोई देगा। अपॉर्चुनिटी प्लेटर पे तो देने वाला नहीं है। That's always the case. वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आई थिंक यू मूव टू चलो। Yeah. As a- So after after Pepper Fry. 3 years of Pepper Fry, I moved 3 to, years? Yeah, Okay. yeah, almost 3 Nice. years. I moved to Chalo. If I ask you कि in those 3 years at Pepper Fry, as a product manager, what was your day like? मतलब एक product manager का day कैसा होता है in a new age startup? So you just said two things. हाँ. एक comfortable होना हाँ. और एक understanding होना. हाँ. Okay. हाँ. I think comfortable तो होना ही पड़ेगा. Okay. That is mandatory. ठीक है. You cannot expect things to work based on your simple communication. Okay. Okay. हाँ. No matter how much we try as of today, things should work like human nature, language processing, right? नहीं. You have to get comfortable. हाँ. There are then degrees of how much into it you are getting, how much of core engineering you understand, how much of basic idea of things you understand, right? There are these things. So that comfortable होना ही पड़ेगा. दूसरा आता है how much knowledge has to be built. हाँ. I think it depends on the kind of culture there in the company. Okay. Okay, it's highly dependent on that. There could be companies where you are a technical product manager, हाँ. where you are expected to know a lot about tech. For example, we have a very technical product manager culture, where based on the requirements or understanding what we are trying to build, we are able to figure out, okay, this is how it will get done, this is how it will get inculcated in the system, this is how much time will it take. So these are kind of assumptions we are able to make with, let's say, 5 to 10% गैप. हाँ. अगर मैं 10 बोलूंगा 10 दिन का काम है, तो डेवलपर आके 12-13 बोल देगा. 15-20 तो डबल हो गया ना. उतना नहीं होगा. ठीक है. ऑब्वियसली हमारी टीम वाले अभी डिसएग्री करेंगे, ठीक है, कि गलत ही बोलते हैं, बट तो एक आइडिया बन जाता है विद द मोर टेक्निकल यू गेट, राइट? दैट डज नॉट जस्ट हेल्प यू इन figuring the timeline. That's just one aspect of it. I think when you're sitting with developers, when you're explaining things, you are able to tell more details. They're also able to understand, अच्छा ये इस तरह से बोल रहा है, ये इस तरह से करने से ये हो सकता है, right? More often than not, fight यही हो रही होती है कि ये जल्दी कर दो, वो बोलते नहीं तो टाइम लगेगा. So if you have more information, यार मैंने तो ये सोचा था, ये ऐसे ऐसे कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा. आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसको कैसे बोलोगे? फिर तो वो बंदा बोलेगा इतना लगेगा, एंड दैट पर्सन इज करेक्ट. क्योंकि उसके माइंड में जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो लंबा ही है, वो उतना ही टाइम लेने वाला है. ठीक है. तो जो फाइट रहती है ना डेवलपर और प्रोडक्ट की, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. वो लड़ते रहते हैं कि यार ये तो जल्दी करना था. तो बट आई हैव रियलाइज्ड इट्स डेवलपर आर आल्सो करेक्ट. वो कुछ चीज का बोलते हैं इतना टाइम लगेगा, वो सही है. जब प्रोडक्ट मैनेजर बोल रहा होता है ये तो इतना लगना चाहिए था, वो भी सही है. पॉइंट क्या होता है, इसके माइंड में एक तरीका होता है, वो इजी होता है कि ऐसे कर लेगा तो जल्दी हो जाएगा. ये बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे सोच रहा था, और तेरा जो तरीका है उससे ये आफ्टर एक्स यूजर्स और आफ्टर वाई डेज ये चलेगा नहीं. ये चल रहा होता है. तो जहां पे ये मीट कर जाता है कि यार हाँ चलो ठीक है, ये MVP है, MVP की मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या POC कर रहे हैं, या फिर हम ये स्कोप सोच रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेयर both developers and product come to an agreement. I get it. But I think जो वो लड़ाई रहती है वो इस चीज की है, where they are coming from. And see, fundamentally developer is trying to build the best product possible. वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं तो बहुत बढ़िया बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और इसलिए उसका एक व्यू पॉइंट रहता है. प्रोडक्ट मैनेजर के पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये होती है बिजनेस क्या चाहता है, कि
कब चाहता है और उसको स्केल का आइडिया है। ये सोच रहा है कि यार ये फीचर तो मैं 1 लाख लोगों के लिए लेके आऊंगा, राइट। डेवलपर सोच रहा होगा तो 1 करोड़ लोग आएंगे। अगर वो सोच रहा है तो वो उस हिसाब से स्केलेबिलिटी के बारे में सोचता सोचते हैं, हाँ। है। तो ये चैलेंज होता है इट जो कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन ओनली ना, पर आप किस तरीके से सब बिल्कुल। तो जितना आप अगर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड कि कितना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मोर नॉलेज यू हैव, more context you are able to share with the developers and the team, and he is also able to communicate with you comfortably. Otherwise उसको भी लगेगा यार फिर तुम क्यों सिखा रहा है मुझे, मेरा काम है ये तो एक आई थिंक इट वर्क्स आउट वेल इफ यू नो मोर एंड मोर ऑफ टेक। पर आपको जब आपने पर्सनली स्टार्ट किया, बिकॉज यू डोंट हैव अ टेक बैकग्राउंड, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस इन द अर्ली डेज? डेफिनेटली। किस तरीके के चैलेंजेस आते थे? सो चैलेंज इस तरह के आते थे कि ये टाइमलाइंस के अराउंड, अच्छा, हमें लग रहा होता था ये इतना सिंपल है, इजी है। जस्ट थिंक राइट, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, एंड लेट्स से वी हैव टू पुट अ स्विच बोर्ड हियर, राइट? यू विल थिंक यार आशीष यहाँ से नीचे से वायर लिया और यहाँ से ऊपर ले जाओ और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा दे, करेक्ट, राइट? कितना टाइम लगेगा, वायर लानी है, वहां पे प्लग है, ठीक है। डेवलपर बोलेगा नहीं यार मैं तो कंसील्ड लेके आऊंगा, मैं वहां पीछे से ड्रिल करूंगा, लंबी पाइप डालूंगा, वायर यहाँ आएगी, कंसील्ड रहेगा, फिर यहाँ पूरा मैं गड्ढा करूंगा, फिर एक बढ़िया अच्छे तरीके से करूंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ पे कुछ है, राइट? तो आई थिंक वो आइडिया भी आ जाता है प्रोडक्ट वाले को, मेरे को भी आते थे आइडियाज, ठीक है, बट वो कितना एफर्ट है, उसे दीवार तो नहीं गिर जाएगी, ये नहीं पता होता था। मेरे को तो वो भी इजी लगता था। तो समझ रहे हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो, बट एज ए प्रोडक्ट पर्सन मेरे को ये नहीं पता होता कि उसका क्या और इम्पैक्ट हो सकता है। तो व्हेन यू आर मोर इनटू द सिस्टम, राइट? और मैं तो जैसे सडनली लोमबार्ड, पेपरफ्राई, चलो ये सब में आ गया था, राइट? तो सडनली आप यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ सच बिग सिस्टम्स दैट आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम लॉन्ग। तो ये चैलेंज आता है कि इससे मैं तो एक आइडिया छोटा सा सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये बड़ा चैलेंज आता था। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो आप लोग यूजली समझते हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज आना चाहिए या कोडिंग आना चाहिए, वहां पे मुझे कभी चैलेंज फेस नहीं हुआ। आई थिंक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एक तो, दूसरा मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स एल्गोरिदम्स, लॉजिक, ठीक है, द वे यू वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग। बिल्कुल। सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू टेल कि यार मुझे ये चीज चाहिए, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इफ यूजर कम्स लाइक दिस, ये होना चाहिए, इस तरह का यूजर है तो ये आना चाहिए, 20 तरह के यूजर पर्सोनास बना सकते हो, 20 तरह की यूजर जर्नी बना सकते हो। इफ यू आर एबल टू राइट दैट डाउन इफेक्टिवली एंड कम्युनिकेट टू द डेवलपर, उसकी लाइफ भी इजी हो गई, आपकी लाइफ भी इजी हो गई, आप टेस्टिंग इजीली कर सकते हो। तो चैलेंज उस चीज का आता था कि अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, आर्किटेक्चर, कोडिंग समझने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, टिल डेट मुझे कोडिंग नहीं आती है, ठीक है, मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है, आई गूगल इट, कुछ समझना होता है तो कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं डेवलपर्स, आई मेक श्योर आई लर्न दैट कि क्या बात कर रहे थे, ठीक है। इवन टुडे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, राइट, बट फंडामेंटल इज दैट आई एम क्यूरियस, मेरे को जितना समझना होता है ये टूल ऐसे काम करता है, क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, उसके पीछे कोडिंग कैसे करी, क्या करी, आई डोंट नो, तो दैट्स हाउ आई ट्रेड थ्रू दिस, एंड 2 मिनट और इस पे अगर बात कर सकते हैं, प्लीज। सिमिलरली इफ यू सी एआई, एआई वाले जो फील्ड्स, सेम चैलेंज है आज सबके लिए, सबको, इफ यू सी, मैं भी आज 0 पे हूँ, आप भी 0 पे हो, एआई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, राइट? बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फंडामेंटली हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कोडिंग करी है, एलएलएम जिसने बनाए हैं, देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट, बट वो क्यों बनाए, कैसे बनाए, वो समझ लो, और आपका यूज केस फिगर आउट कर लो, हाउ टू यूज इट इन डे टू डे, वहां पे क्यूरियोसिटी और यूज केसेस और दिमाग लगाना है आपको, राइट, यू विल सर्वाइव। बट इससे मुझे ये भी जानना है आशीष, आपने ये तो बता दिया दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज गुड, जितने डेप्थ में जाओगे, जितने क्यूरियस होगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद द डिफरेंट टीम मेंबर्स आल्सो एंड मे बी गेट द डिलीवरीज डन ऑन टाइम।
बट इफ आई आस्क यू मेजर स्किल्स ओवरऑल, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आज इन 2024 कोई अगर फ्रेशर है या जॉब स्विच भी करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है, कोई कंसल्टेंट है जो प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 3 स्किल्स दैट अ प्रोडक्ट मैनेजर नीड्स? Got it. So, first and foremost is communication. ओके. Okay. Communication is not about speaking the right English or the suave English. और द right? jargon or words, knowing हाँ. the vocabulary or हाँ. jargon. No. Correct. Communication is basically what business is about. हाँ. Understanding that what is the need of the hour, what is the need of user. उसको समझना, उसको अच्छे से थॉट्स में, सिंपल थॉट्स में लिखना. I really feel लिखना is a very important part. Okay, that helps you write. To put your thoughts. Put your thoughts effectively. हाँ, हाँ. लिखना एंड देन उस चीज को रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना और फिर कम्युनिकेट करना डेवलपर को. Correct. If you take just one thing directly to the developer without putting this, making it simpler, right? You are creating just chaos. True. Because Confusion. everything will sound very very complicated on the this side of the table. And same, there will be challenges. ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी आइडिया लाओगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक चैलेंज आएगा, यार ये करने में ये चैलेंज है, कैपेबिलिटी इशू है, पुराना टेक डेट है, इसलिए नहीं हो पाएगा. Correct. वो आगे कम्युनिकेट करना, बिकॉज डिले आएगा उस चीज से. बोल दोगे यार फलाना फलाना मेरा पुराना ये, बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है, राइट? सही बात है. कितना कॉन्टेक्स्ट देना है, कितने इफेक्टिवली आप डिले कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट? इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो हेंस कम्युनिकेशन इज फर्स्ट थिंग फॉर प्रोडक्ट पर्सन. ओके, सेकंड आई वुड से इज क्यूरियोसिटी. ठीक है, कि मुझे ये जानना है, मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मुझे टेक समझने से भी काम नहीं बनेगा, सिर्फ बिजनेस समझने से नहीं होगा, मुझे बिजनेस भी समझना है, मुझे यूजर भी समझना है. करेक्ट. जो यूज करने वाला है. हाँ. अगर आप B2B हो तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, बिजनेसेस हैं, आई थिंक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. नॉट जस्ट कि मेरा प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहा है, बट वो यूजर और चीजें क्या यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी चीज बनाते हैं, ठीक है, हमें कार्ड्स दिखाने हैं, स्क्रॉल बनाना है, राइट? मैं सोचता हूँ कि यार अगर सोचने का तरीका समझा रहा हूँ थोड़ा सा. मैं एक फिनटेक ऐप में इन्वेस्टमेंट करवाने वाली, ठीक है, मैं सोचूंगा, नॉर्मल एक बंदा सोचेगा कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऐप क्या कर रही हैं, राइट? बड़ी कॉमन सी चीज है कि यार बिग एप्स आर देयर, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है. बट मैं थोड़ा सा डिफरेंटली कैसे सोचता हूँ, मेरा यूजर ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. मैं वहां से देखता हूँ कि यार वो लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या मैं कैसे उन एप्स में इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो मुझे डील्स दिखानी है, तो आई वुड रादर गो एंड फिगर आउट हाउ फ्लिपकार्ट इज बिल्डिंग थिंग्स. वहां पे मास यूजर्स हैं, Right. अमेजोन कैसे कर रहे हैं. So we take inspirations from all these companies so that we can build something nice for our users. Okay. So coming back to the point, curious. So that if that curiosity is there, na, the person will be able to find broader solution to things. Correct. So that's second thing. So ठीक है. first is communication. Second curiosity. Third is problem solving. ये तो Okay. बहुत. हाँ. Now problem solving. How do you define problem solving? Good question. Okay, so problem solving is somewhere intelligence. Okay, being jugadu, being able to find innovative Ways. solutions, right? So third one is this. See, there are always hundreds of solution for same problem. Correct. What is apt for your situation in that circumstance, with the set of folks, people, different variables, right? What is apt for you, that is problem solving. You want to go to Bombay, there are tons of ways, right? Different kinds of money, but you have a budget. You are always figuring out how to reach there fastest with this budget and with comfort, right? That to me, figuring that out is problem solving. We just, for audience, we just had this moment. We were figuring out solutions, right? Correct. Parallelly. That battery got discharged, Battery. how do we solve it? Correct. So that's problem solving again. हाँ. So these are the three key things that at least I see in people.
कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर रहे हो. बिल्कुल. Now, if you see, at least I am not looking for that technical skill, right away. now. So, if there is person who is curious, who is smart, who has good communication, person will work out. Okay. He'll find solutions. He'll learn. Right. Okay. So these are some of the three key things. Then over and above, if someone is already aware of what is product management, how softwares work, that is all additional. And again, it's situational, what kind of profile you're hiring for, and then matching that thing to these three things. Correct. So that's the thing. These are the three required skills for product managers. Great. Thank you for sharing that, Ashish. And obviously, it all makes sense. But now let's understand, I think for a long period of time, you were a product manager. After Pepperfry, you moved to Chalo as well. I want to now dive into when did this point come in, जब आपको realize हुआ, चलो अलग-अलग companies में, startup environment में भी एक typical, in a bank also, which is an established company, हर जगह I have worked, right, as a product manager. From product management to starting up. And starting up something in the investment or finance space. वो पूरा एक ट्रांजिशन और शिफ्ट कब हुआ और आपको कब रियलाइज हुआ कि यार, आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी, आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के दिनों से ही ये पता था कि खुद का कुछ बिल्ड करना है, बट इस स्पेस में करना है, कैसे करना है, वो डिसीजन कैसे लिया आपने? अगेन जस्ट टाइंग इट बैक टू ऑल द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस दैट हैपेंड, राइट? ऐसा नहीं है कि लोम्बार्ड के टाइम पे ही वो एफर्ट मारा था, पेपरफ्राई के टाइम पे वीकेंड पे फ्री बैठे हैं. Everyone is aware of Khata book. Yes. Right? What it does. Yes. I have attempted to go to 2-3 shopkeepers, figure out, अच्छा, how do you manage inventory? How do you do this? How do you do that? Effort मारा हुआ था. 3 shopkeeper पे गया था. खाता बुक वाले founders 100 पे गए होंगे, 200 पे गए होंगे, to validate their things. ठीक है. So zeal was always there. कौन कितने लेवल तक आगे मेहनत करने के लिए तैयार है, वो लोग चले जाते हैं आगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें 100 में चला जाता, हो सकता है कि वो आइडिया मैं भी परस्यू कर रहा होता, राइट? मैंने 3 के बाद हार मान ली, या मैं वापस आ गया घर, थक गया, ठीक है. तो जील हमेशा से थी. देन वेंट टू चलो. देयर माय रोल एक्सपेंडेड अ लॉट इनटू ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, business development. Right. So got to learn a lot holistically about a business. So I was like mini CEO of Kolkata city for running buses for Chalo. For Chalo. Okay. No matter what the designation is, what I am doing. Got this great opportunity, got good support from co-founder, CEO, everyone in that company. Then learning all this was in itself like a mini MBA for me. Right. Business के बारे में पता चल गया. There I met Nikhil Agarwal, who is now co-founder and CEO of Grip Invest. You met him in Chalo? Yes. Okay. He was also co-founder there at Chalo. अच्छा. Okay. Okay. Met Vivek Gulati, who is co-founder and CEO at Grip Invest. He was taking care of business development at Chalo. So दोनों को आप चलो पे ही मिले? बिल्कुल. चलो में. Okay. Nice. So Vivek is a very close friend. He used to stay with me in Kolkata. He came to Kolkata for doing some pilot business. Okay. And very less interaction with Nikhil, but met him there. Okay. Right. Because he was co-founder and I was just handling a city, right? There were many city managers. Right. Then eventually I worked there for 3.5 years. Later these both guys left and started this. They left before you? Yeah, they left before me. Okay. They started building Grip. There was this COVID time. I was figuring out a lot of things. I left Chalo to dabble into something into real estate. Didn't work out. Then eventually I joined Vivek. पर ये decision था ही कि छोड़ोगे job. That was not sudden. Eventually पता ही था you'll leave. तो था कि we'll start something. We'll start something. वो हमेशा से था. Okay. तो thinking of ideas, dabbling with some idea, doing something. So I'm a baniya, right? I'm not saying non-baniya can't do it, but वो रहता ही था. You are going to a restaurant, you are just running the numbers. You are going to vada pav stall, you are running numbers. अच्छा, कितना बनाता है ये, क्या चल रहा होगा, right?
So those numbers and those mathematics are always going on, economics of things. So hence वो था कि करना ही है. Okay. And then my now wife and then girlfriend Okay. was also very supportive. Right. कि हाँ ठीक है कर ले करना ही है ठीक है. तो I think with this parents always have this कि सही तो कर रहा है ना, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा. I think they always want to know कि बच्चा कुछ गलत ना कर रहा हो. Correct. They still might not be fully understanding what I do. हाँ. It's alternative investment. It's new space that we yeah. are building. Correct. But my father just अच्छा ठीक कर रहे हो ना, लोगों के रिटर्न जा रहे हैं ना, हाँ. टाइम से जा रहे हैं ना. हाँ. These are 3-4 questions he asks always. हाँ. I'm saying yes, things are going well, happening. So that's how this whole journey of Grip Invest started, and thereafter kept on learning, kept on relearning a lot of things, and I think this journey is, I think it's just beginning of many new things that we all three are trying to solve here. Right. For example, at Grip, okay, we have internally 4 companies now. Grip Invest, Grip Broking, GFIO, Okay. a debt fund, Electrify Mobility for EV space. Okay. So it's very exciting. There are 4 companies within Yeah. Grip. ये मुझे नहीं Yeah. पता था. Okay. Yeah, so a lot of things are happening, and we are all very excited about building this. Right. Very interesting. Yeah. And also obviously very amusing to know कि again आपको अपने दोनों co-founders आपके ex company में ही मिले थे. And then when did you decide कि चलो इनको join करना है? Like did you also have some kind of an interest in the finance space as such, Ashish? आपकी या were you excited about building something in this space for users? वो एक व्यू पॉइंट कहाँ से आया कि इस स्पेस में कुछ किया जा सकता है? बिकॉज एक इंटरेस्ट होना चाहिए टू बिल्ड समथिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच. I believe you yeah, should. you're right. I think for me, it's that those 3 things I told you, right? Communication, curious, problem solving. I think Yes. I relate to those 3 things a lot, right? Right. I just applied that mathematics, and it worked. Then I didn't think if it is finance or if it is something else. It was exciting. I was curious to understand and solve it. And then product and tech is something that I have known. Right. Then just jumped right into it, and with known folks it was easier to get into and work along. Correct. Got it. And अब I want to know, it's been almost 3 years Yeah. of building the company. Yeah. जो जिस विजन से आपने ग्रिप इन्वेस्ट स्टार्ट किया था एंड नाउ वेयर इट हैज कम, आई एम श्योर द विजन वुड हैव नॉट चेंज, बट व्हाट इज द विजन इवन टुडे एज अ कंपनी, एज फाउंडर्स? What are you looking at achieving via the work you're doing, the product that you're building, and who is it that you exactly want to target even going forward? Has that changed the consumers? No. So we started with this idea to build an investment platform Right. to provide people opportunities that were earlier not available to them, Okay. and hence the segment alternative investment. Right. That you are able to invest in stock market, mutual fund, but there are still opportunities out there that are giving good returns in the range of 11 to 15%. Right. Okay, but are not available to you just because the ticket size is high or that information is not accessible to you. So that idea was there, fractionalization of those opportunities, making them accessible, Right. right, and making it easier for the user. So that was the idea, okay, when we started, and the idea still stays true today. Philosophy is now that make it an institution, Make it an institution. that it stays more than us, it stays longer than us, Correct. like Tata's, that how they have built their Right, legacy, business, right? legacy, yeah. So that's the vision now. Got it. And मुझे ये भी जानना है आशीष कि when you're building a company and it's a growing company, I remember you told me you're close to about 100 employees now, some working remotely, some come down to the office. जब एक scaling stage पे एक startup आ जाता है where you guys are and you have multiple companies like you said under the branch of Grip, what I want to understand is hiring is one thing which every founder in a way doesn't struggle with.
is trying to figure out. Because मैं जिस भी founder से बात करूँ at any scale, nobody says we have cracked the code that I've got it right. And I don't think you ever can. Right. But I want to understand कि जब आप hire करते हो at Grip, what do you look at in a person? I'm not talking for a specific role. In general, what does a person need to have to make it to the cut? And then how do you maintain that culture? Because company आगे बढ़ेगी team की वजह से ही. Right? Because बिना team के nothing can move. Right. So how do you get those team players who align with your vision and are ready to help you reach that goal जो vision है company का? Right. So interestingly, I learned a lot about hiring in the last company, Chalo. In Chalo, okay. I was at one point of time managing 100 people below me. Okay. Okay. Operations थे तो we hired a lot. Right. In Kolkata. So this I learned there. You hire for person who has great ownership, high learning agility, and is smart. Three Nice. things: Okay. ownership, learning agility, and smart. A person who is smart but not owning things will not work. He'll always be Think- smart about how it did not happen. Correct. Person who is smart owning things but always saying yeah, I know it failed, what can I What do? can I do? वो कभी सीख ही नहीं पाएगा. His learning agility is missing. Correct. So if person is smart, making mistakes, owning them, learning from them, and moving ahead, that's what we look for. Got it. That सीख तो लेगा, करता रहेगा ना कुछ, as long as mistakes are not getting Repeated. हाँ. right? That's the fundamental thing, apart from the skill sets that we are looking for. But Ashish, जब आपने like it's very great and I think very interesting also, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है, बट जो तीन चीजें आपने बोली इन जिस तरीके से बोली, इट्स अ वेरी, आई हैव नेवर हर्ड दैट आंसर बिफोर, सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट जब एक इंसान वैसा आपको मिल गया, दूसरा मिल गया, अब 100 लोग हैं, उस मोमेंटम को मेंटेन करना विथ 100 पीपल कि everybody is at it every single day. How do you build that team culture as a leader, as a founder? So of course it's difficult. Yeah. There's no other way of putting it. But if you have done the first set of hiring the right way, you are closely involved. Right. First 20, first 25, first 30. Right. As much as deeper you can get in the hiring process for the first 50 maybe. Right. You are already hiring people who have high ownership. Correct. Then they are your custodian of the culture. If you have hired these set of folks well, they will hire the next folks set the of- same way. Correct. See, it will never, and it's always a question that gets asked, right? If I have hired a person, he's taking reporting of 5 people. I am measuring that person with high standards, right? With these 3 things and other parameters, right? Correct. Do you think that person will measure their report is with different standard? No. Then that person is either going to fail Huh. or he's going to raise the standard and imbibe the culture. Correct. So it goes hand in hand that when you are hiring good people, eventually even they will be Able to making hire. good decisions and hiring good people. Correct. And of course, mistakes are bound to happen. Wrong hirings also happen, right? It's both ways. And I think it's a learning process also for you. And it's both ways, right? Even they have some feedback. Yeah. We have some feedback. It happens. Correct. It's not a good match. Right. Interesting. Let's also talk a little bit about how, मतलब ये एक क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ, बहुत फिलोसफिकल और क्लीशे है पर मैं पूछती हूँ, because it tells a lot about the person and how they are perceiving life right now. आप कुछ भी करो, like you said, you try 10 things out, maybe 9 out of them will not work, 1 will work. It's all about persistence, I believe, right? And you will fail, you will succeed at some things. But today, where you are currently, Ashish, जब आप पूरी अपनी journey को देखते हो and where you have come, इस वक्त according to you, what is the meaning of success in life for you? Or do you think you are successful? Very, very philosophical question. Very philosophical, but yeah. So I have thought about it Huh. in general. Huh. Okay. In fact,
This is the other way of putting it. मेरे एक दोस्त ने एक बार बोला, so Mr. Jindal, you have arrived. मैं बोला Arrived. arrived का मतलब क्या है भाई? तो मतलब सक्सेस हो गई है वो, राइट? आई थिंक समझ गई. तो आई थिंक फंडामेंटल थिंग इज दैट टू मी कि मैं बिजी रहूं, ऑक्यूपाइड रहो, ऑक्यूपाइड रहूं, कुछ ना कुछ कर रहे हो. एंड देन दैट इज वेरी डेंजरस, ऑल्सो. राइट? वर्कaholic भी होते हैं, ये भी होते हैं, राइट? तो फिर देन आई कॉइंड दिस थिंग हेल्दी बिजी. हेल्दी बिजी. ठीक है कि आप बिजी रहो. हेल्दी बिजी मीन्स आपका काम भी हो रहा है, आपका घर पे टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है, फैमिली, वाइफ, फ्रेंड्स, ठीक है, आप हेल्थ का भी ध्यान रख पा रहे हो. आई थिंक दैट इफ यू आर एबल टू मेंटेन अ बैलेंस while growing in all the aspects. But it's difficult. Of course it's difficult. Yeah. Nothing is easy, right? Yeah. So that is healthy busy. Got it. If you just put efforts on work and not taking care of other aspect, you are not healthy, then फायदा क्या है उस चीज का? And hence running is my love now, right? And I am usually found saying कि भाई मेरे को कोई बोले कि ये 10 करोड़ रुपए ले ले और रनिंग छोड़ दे, I would go and say bye bye to the money and will go running. I think fundamentals are very clear कि क्या करना है रोज, ठीक है. अब आते हैं कि ये चीज सक्सेसफुल है नहीं है. I think as long as we are able to do this, there will be obviously new variables, right? If you are healthy busy, by adding new variables, maybe you are reducing something. कुछ ना कुछ नया इक्विलिब्रियम बनता रहेगा. Correct. But some things will keep staying, right? वर्क हमेशा रहेगा, हेल्थ हमेशा रहेगी, फ्रेंड्स, फैमिली सब हमेशा रहेगा, राइट? कुछ नए आते रहेंगे, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज मिलता रहेगा. So that's the successful mantra. I think I feel successful if I am able to end my day with all these three things tick marked. Yeah. Interesting. और मैं जब भी किसी से भी ये क्वेश्चन पूछती हूँ, सब अलग जवाब देते हैं, because everybody is perception and understanding of success is different. It's so subjective, right? आपने जो बोला है that may not be applicable for me, for example. That's why I've realized that everybody explains it in a very different manner, and hence I still ask that question. Yeah, and I'm damn sure कि कई चीजें sorted है मेरी लाइफ में. Correct. And hence I'm able to Hence talk you're like able this. to. हाँ, वो भी है. राइट कहीं ना कहीं अब पता है कि एक स्टेज पे स्टार्टअप है या Correct. कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है तो हाँ. सैलरी आ रही है, राइट? हाँ. तो बेसिक्स के साथ साइड नहीं है तो इसलिए ये सब हो पा रहा है. Exactly, वो किसी possible की है. लाइफ में और डिफरेंट चैलेंज है तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन डिफरेंट होगी उसके लिए. True. सही बात है. With that, Ashish, I would just like to also understand कि with Grip Invest, अभी vision क्या है for the future? Is there anything exciting that you guys are working on, which is going to come out in the near future? Anything that as a project or in any of the sub companies also that you are very invested in, working towards, the team is enthusiastic about, if you'd like to share that also. Sure. So at Grip, we have been doing like immensely innovative things. Like not innovative, immensely innovative thing. We are in debt segment. Yeah. We are SEBI regulated, Right. And we are always thinking about customers and hence keep on innovating how to make life easier for the customer. Right. And we keep on doing so many industry first things. Right. For example, we were the first one to launch securitized debt instruments for retail investors. Okay. We were the first one to go fully live with the OBPP platform, online bonds platform provider. Correct. Then we also launched so many innovative things that my competition is then copying them exactly word to word. Same. Like even if there is a comma mistake, they are making that comma mistake. They are copying it, but they are doing it 3 to 4 months later than us. Okay. So while I am already ahead of them, they just keep on copying and maybe they will always be late. So following that, we are already building on lot many things. I think by the time this podcast will be out, we'll be live with corporate FDs. Corporate FDs. Oh, Yes. very interesting. So adding to the existing bouquet of opportunities that we provide in the debt segment, corporate FDs will be a very good addition. Parallelly, we are also thinking very innovative, providing how do we provide better diversification opportunities to the user with single clicks. So a lot more ideas that we are dabbling with and we'll keep on delivering.
So these are some of the things that we are doing. Very interesting, exciting. I think मैं आपको questions तो पूछती ही रह सकती हूँ आशीष, but I think we will also come to a conclusion of the podcast. But with that, one last question that I want to ask you, Ashish. Today, as you know, I wouldn't say it's the startup culture, but it's the faith that not just the youth, but overall Indians in general have started building towards creating things from scratch and owning up to it and saying it with pride कि हमने बनाया and it's made in India. वो जो एक movement है, and everybody is just suddenly okay with this entire ecosystem of being in India, people who are going abroad, coming back to India, making startups, जो भी ये wave चल रही है, and there's so many people who are aspirational and want to become entrepreneurs, right? But entrepreneurship is a tough journey and it's a long term game. जितने भी आपने साल अभी इन्वेस्ट किए हैं in building Grip Invest from scratch, basis that I won't ask you what are your 3 top advices या आपने main 3 important चीजें क्या सीखी, but what's the most important, just one thing, piece of, I would say, learning or something you've picked along the way, जिसके बिना you think there is no way a person can succeed in general in life. It's not about just becoming an entrepreneur. जो तो आपको करना ही करना है, उसके बिना तो it's just not possible. You're going to be able to move forward. What is that one thing? Curiosity. Okay. If you're not curious, you can't do things. Like we discussed, right? हाँ. मांगोगे नहीं हाँ. तो मिलेगा नहीं. Correct. Curious होगे हाँ. तो मांगोगे, पूछोगे, result आएगा. Right. You'll learn something. Right. If you're not curious, things will not happen. So you are basically trying to say that if you are not inquisitive enough to know anything, बिल्कुल. or to dive deep into something or give it your all, तो कुछ फायदा है ही नहीं. बिल्कुल नहीं होगा. Because there has been scenarios. मैं early days I used to handle marketing as well. SEO कैसे होना है, Google Tag Manager क्या होता है, Google Analytics क्या होता है, कुछ नहीं पता था. Right. कैसे इंटीग्रेट करना है, no, not many tech members to solve it. हाँ. ओवरनाइट 6 घंटे की वीडियो 2x की स्पीड पे देख के कैसे इंटीग्रेट करना है, फिगर आउट करना है, क्यूरियोसिटी है. इधर आई कैन स्पेंड टाइम थिंकिंग कि कोई मैं बंदा हायर करूंगा, सही बंदा आएगा, वो करेगा और तब बनेंगी चीजें. ऑलवेज देयर आर रीजन. वो तो हाँ. या मैं यूट्यूब वीडियो देखूंगा, 2x 3x पे लगाऊंगा, पैरेलली बिल्ड कर रहा हूँ. क्यूरियोसिटी. Curiosity, but I think curiosity also stems from your mindset. वो mindset भी होना चाहिए इंसान का to be able to think of things like that. Very interesting. But I think overall, Ashish, it's been a wonderful conversation with you. Right from knowing how your early days in college were to your ragging के किस्से to everything around how you've gotten into the product management field from being in such a niche engineering, specialization. And what you guys are building at Grip, it's a wonderful journey. And I think, I am sure that जो भी इस point तक इस video को देख रहे हैं, they will have a lot to take back, learn. And I hope this helps a lot of aspiring entrepreneurs or just builders in general who want to create something. That's it for today's episode. I hope, Ashish, you had a good time on the Theradicos I had a great time and really enjoyed the conversation. You're doing a great work. Keep people inquisitive, and I think you're doing a great work. Keep doing your podcast. Thank you so much, Ashish. With that, we will also be linking in all of Ashish's and Grip Invest socials in the description, so please do check it out. That's it for this episode. I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe to the Theradicos channel. Thank you.